السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیًا اما بعد۔ عزیز طلباء طالبات، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ جو ہے بہت اچھے طریقے سے الفاظ معنی یاد کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو الفاظ پڑھ چکے ہیں آپ یاد کر لے ہوں گے اور استعمال کرتے ہوں گے، اور ابھی جو ہے بہت کم الفاظ ہیں جو ہمیں استعمال کرنے کے لیے باقی ہیں لکھانا، اور جو الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ ان الفاظ کے ذریعے ہم عربی زبان اب بول سکتے ہیں، جملے بنا سکتے ہیں، اور اپنی ضرورت کی جتنی چیزیں تھیں میں نے آپ کو لکھا دیا ہے۔ اب کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم پہلے نہیں لکھائے تھے، تو کچھ نئے الفاظ آئیے ہم پھر سے شروع کرتے ہیں اس سبق میں۔ تو آج جو ہے ہم دوسرا جو سبق شروع کر رہے ہیں، آسمان اور زمین۔ زمین اور آسمان کے متعلق کچھ الفاظ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو زمینوں میں یا آسمانوں میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، جو تبدیلیاں آتی ہیں، جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو زمین و آسمان کے اشیاء کے متعلق الفاظ یہاں آپ ہیڈنگ ڈال دیجئے، زمین و آسمان، زمین و آسمان سے متعلق اشیاء، زمین و آسمان سے متعلق چیزوں کے نام لکھ دیجئے، چاہے چیزوں کے نام۔ ابھی جتنے بھی الفاظ ہم پڑھے ہیں وہ ہم روزانہ استعمال کرنے والے الفاظ پڑھے ہیں، اور یہ الفاظ بھی ہم روزانہ بولتے ہیں۔ اب زمین آسمان یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں اور ان کو ہم بولتے رہتے ہیں۔ تو زمین کے لیے ہم اردو میں بھی وہی لفظ استعمال کرتے ہیں جو عربی میں ہے، اس کو کہتے ہیں ارض۔ اردن، آپ جانتے ہیں ارض و سما بولتے ہیں، ارض کے معنی زمین۔ تو یہاں جو ہے آپ ارض لکھ لیجئے، اس کا معنی کا ایک کالم بنا لیجئے، اردن زمین، ارتھ، انگلش میں کہتے ہیں ارتھ، زمین۔ اس کو اردو میں بھی بولتے ہیں اراضی، اراضی، ارضونا، کئی دو لفظ آپ لکھ لیجئے اس کے جمع میں۔ ایک تو اردو میں بھی بولتے ہیں اراضی، آپ کورٹ وغیرہ میں دیکھیں گے بہت سارے مقدمان جو دائر کرتے ہیں اس میں بولتے ہیں اتنی اراضی میری ہے۔ تو زمین یہ ارض کی جمع اراضی آتی ہے، تو اراضی، اور اسی طرح ارضونا دو لفظ آتا ہے نا، تو اس طرح دو لفظ یہاں آپ لکھ لیجئے جمع، اراضی، ارضونا۔ اور آسمان کے لیے آپ جیسے میں نے بتایا سما، ارض و سما اردو میں بھی بولتے ہیں، تو سماؤن، سماؤن، آسمان، اسکائی انگلش میں بولتے ہیں، اردو میں آسمان ہم کہتے ہیں، تو سماؤن کہتے ہیں آسمان۔ آسمان و زمین جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں تو ارض و سما عربی میں بولتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے سماوات، رب السماوات آپ سنتے ہوں گے، بہت مشہور لفظ ہے۔ اس میں آپ سما کھڑا زبر لکھیں گے سماواتن، ارض و سما، سما کی جمع سماواتن۔ اب یہ آسمان و زمین کے بیچ میں، زمین کے اوپر جو چیز ہمیں ہمارے روح کو سکون دینے کے لیے، ہمیں آرام دینے کے لیے جو چیز ہوتی ہے جسے ہم ہوا کہتے ہیں، ہم ہوا اردو میں بولتے ہیں لیکن یہ ہے عربی کا لفظ، ہوا، ہواؤن اس کو کہتے ہیں، ہوا، اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہوا ہی بولتے ہیں۔ تو یہ ہوا جو ہے، ہوا، پانی ہم جو دیکھتے ہیں ہماری زندگی کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے۔ تو ہوا یہ لفظ جو ہے عربی لفظ ہے، اس کی جمع آتی ہے اہویتن، اہویتن، اہویتن۔ تو یہ ہوا لفظ جو ہے آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، عربی میں بھی۔ زندہ رہنے کے لیے انسانوں کو، حیوانات کو ضرورت پڑتی ہے ہوا کی، اور اس کے ساتھ پانی جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے جس سے اللہ نے ہر چیز بنائی ہے، ماؤن، پانی، یہ جو ہے پانی بہت ہی اہم ضروریات میں سے، ہمارے زندگی کے لوازمات میں سے ہے کہ اگر آدمی ہوا پانی نہ پائے تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو ماؤن کی جمع آتی ہے میاہن، امواہن، ایک جمع اس کی میاہن، میاہن معنی پانی، جمع پانی کی جمع
माउन की जमा मियाहुन, और इसी में एक दूसरा जमा आप लिख लीजिए अमवाहुन, 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 मियाहुन अमवाहुन, माउन पानी जमा मियाहुन अमवाहुन, ये दो लफ्ज आप लिख लीजिए। हाँ, आग के साथ उसका अपोजिट जो आप जानते हैं आग पानी बोलते हैं। हाँ, तो माउन का उल्टा अपोजिट आता है आग। आग को अरबी में कहते हैं नार, नारुन। नारुन माने होते हैं आग, यानी पानी से आप आग को बुझाते हैं, ठंडा करते हैं, तो नारुन आग। अगर पानी आग पे हम पकाते हैं तो पानी खत्म हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, तो एक दूसरे के दुश्मन हैं। नार, आग और पानी एक साथ इकट्ठा नहीं रह सकते हैं, तो नारुन एक दूसरे के अपोजिट हैं, आग और पानी। तो नारुन की जमा आती है नीरानुन, अनउरुन। तो एक जमा लिखिए पहले नीरानुन, नीरानुन, एक जमा नीरान है और एक है अनवरुन, अनवरुन। यहाँ आप देखिए उर्दू में भी हम अनवर लफ्ज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पेश पढ़ेंगे तब वो जमा होगा। अनवर लफ्ज जो है ये वाव पे ज़बर जो होता है वो सिंगल होता है, अनवर वो रोशन के माने में होता है। यहाँ अनओरुन है, नार की जमा अनओरुन, नीरानुन, दो जमा यहाँ इस्तेमाल करते हैं अरबी में। हाँ, आग पानी। अब ज़मीन पे जो चीज़ हमें काम आती है खेती बाड़ी में और ज़रूरियात पे, जिसे हम मिट्टी कहते हैं, उसके लिए अरबी में कहते हैं तुराबुन। अल्लाह ने हमें तमाम चीज़ों को, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, इंसान को खुद अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, तो यहाँ तुराब लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, तुराबुन। तुराब के माने होते हैं मिट्टी, तुराबुन मिट्टी। और इसकी जमा आती है अतरेबतुन, दो जमा इसमें भी आप लिख लीजिए पहले अतरेबतुन, अतरेबतुन, तुराबुन जमा अतरेबतुन मिट्टी। और एक दूसरी जमा तुरबानुन, तुरबानुन, तुराब तुरबान अतरेबा, तो तुराबुन मिट्टी जमा अतरेबतुन तुरबानुन। अब मिट्टी से मुतालिक एक लफ्ज आता है वहलुन, कीचड़। क्या बोलते हैं? वहलुन। आप जानते हैं मिट्टी पानी अगर ज्यादा मिल जाए तो कीचड़ बन जाता है, तो उसको अरबी में वहल बोलते हैं। हाँ, वहलुन जिसे हम उर्दू में कीचड़ कहते हैं, तो उसको कहते हैं अरबी में वहल, कीचड़, यानी पानी से मिल करके जो मिट्टी नरम हो जाती है, हाँ, तो वहल कीचड़ बन जाती है, तो उसको कहते हैं वहल जमा औहालुन, औहालुन। तो ये जो है वहलुन जमा औहालुन और वहूलुन। एक लफ्ज और आता है इसमें फ़ऊल के वजन पे, वाव पे पेश, हा पे पेश, वाव साकिन, वहूलुन। तो यहाँ देखिए दो जमा है, औहालुन वहूलुन, वहलुन कीचड़ जमा औहालुन वहूलुन। ऐसे ही मिट्टी से ताल्लुक एक लफ्ज आता है तीन। तीन लफ्ज होता है जो मिट्टी जो है गारे के लिए बनाई जाती है, उसको कहते हैं तीन। तीनुन माने भी मिट्टी होता है, लेकिन मिट्टी जो गारा जैसे हम जिसको कहते हैं पानी से मिला के बना देते हैं, तो उसको कहते हैं मिट्टी भी बोलते हैं, गारा भी बोलते हैं। मिट्टी या गारा उर्दू में जो है, जो मकान वकान बनाने के लिए या कहीं जो लेप लगाने के लिए मिट्टी को पानी से मिला देते हैं, तो मिट्टी जो पानी से मिला हो, एक तो कीचड़ जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा पानी हो गया तो मिट्टी कीचड़ बन गया, हाँ, लोग उससे बचते हैं, भागते हैं, और कभी कभी ज़रूरत पे इंसान पानी मिट्टी मिला करके उसको इस्तेमाल करता है, उसको तीन बोलते हैं। हाँ, तीनुन की जमा अतयानुन, अतयानुन। तो मिट्टी ये तीनुन और वहलुन फर्क है कि वहल जो होता है ये रास्तों में या बिला ज़रूरत जो है पानी गिरने से जो कीचड़ बन जाता है, जिससे लोग भागते हैं, बचते हैं, ये कीचड़ कहलाता है, या गंदगी से मिला हो। लेकिन तीनुन जो लफ्ज़ है ये मिट्टी पाक हो, ज़रूरत के लिए आदमी गारा है या नरम करके मिट्टी को इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको तीन बोलते हैं।
और तुराब जो पहले मैंने मिट्टी लिखाया है, तुराब के माने होते हैं मिट्टी, लेकिन वो सूखी मिट्टी होती है, पानी जिसमें ना हो। ऐसे ही एक और दूसरा लफ्ज है, ऐसी मिट्टी जो पानी मिली हो। और फखार कहते हैं एकदम सख्त जो मिट्टी हो जाती है पक करके, तो उसको कहते हैं फखार। फखारुन, फखारुन के माने होते हैं पकी मिट्टी। अब चाहे आग में पका दिया जाए, धूप में पका दिया जाए, यानी सख्त हो जाती है जो मिट्टी, पक्की या पकी हुई, तो उसको कहते हैं फखार। उसको एक दूसरा लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल होता है ठेकरी। ठेकरी भी बोलते हैं इसी को, ऐसी मिट्टी जो सख्त हो जाए, टाइट हो जाए, उसको ठेकरी भी बोलते हैं। पकी मिट्टी ठेकरी भी बोलते हैं। हाँ, अब ये लफ्ज जो है जमा में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वाहिद करना हो तो ते जोड़ देंगे तो फखारतुन हो जाता है। इसका वाहिद आप अगर बोलना हो तो क्या कहेंगे? फखारतुन, यानी जमा तो नहीं, जमा खुद है और उसके लिए एक कोई चीज़ है पकी मिट्टी की, तो उसको कहते हैं फखारतुन। फखारतुन माने पकी हुई मिट्टी। हाँ, यहाँ किताब में देखिए दाल लिख दिया, रमलुन माने रेत होता है, लेकिन यहाँ दाल दमलुन लिख दिया, ये गलत है, तो दाल को यहाँ रे बना लीजिए। तो रमलुन माने रेत, रे मीम लाम, तो रमलुन माने होते हैं रेत। रेत जो है बालू जिसको बोलते हैं, घर बनाने में सीमेंट के साथ जो इस्तेमाल करते हैं रेत, तो रेत के लिए अरबी में कहते हैं, रेत के लिए रमल, रमलुन रेत, रमलुन रेत जमा रेमालुन अरमुलुन। तो पहला लफ्ज लिखे रेमालुन, रमलुन की जमा रेमालुन, और दूसरा एक जमा लिख लिए अरमुलुन, अरमुलुन। हाँ, तो रमलुन रेत जमा अरमुलुन। ऐसे ही जमीन से मुताल्लिक एक चीज़ है पत्थर जिसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं हजरुन। शजर हजर आप उर्दू में सुनते होंगे, शजर माने दरख्त और हजर के माने पत्थर, तो शजरो हजर। हाँ, तो शजरुन हजरुन, हजर पत्थर, पत्थर के लिए हजर। इसी से हिजारतुन, इसकी जमा आती है हजरुन जमा हिजारतुन, हिजारतुन एक जमा इसकी आती है हिजारतुन, और दूसरी इसकी जमा आती है अहजारुन, अहजार भी आती है इसकी जमा, और हिजारा भी आती है, तो अहजारुन और हिजारतुन, तो हिजारतुन अहजारुन, हजरुन पत्थर जमा हिजारतुन अहजारुन। ऐसे ही कंकरी के लिए आप देखिए किताब में जो लिखा हसीउन दिया है, तो हसीउन ये जमा का लफ्ज़ है, इसका वाहिद आता है हसातुन। तो आप चूंकि पहले किताब में जमा लिख दिया इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं हसीउन। हसीउन के माने होते हैं कंकरी, तो कंकरी ये जमा का लफ्ज़ है हसीउन, कंकरी, कंकरी। अब इसकी जमा आप देखेंगे हसीउन है, लेकिन वाहिद आप बनाना हो तो क्या कहेंगे? हसातुन। एक अगर कंकरी है तो उसके लिए हा स्वाद, हसातुन, हसातुन, हसीउन कंकरी, और इसका वाहिद हसातुन। हसीउन ये जमा है। और रुखामुन, देखिए यहाँ भी जमा का लफ्ज़, अभी पहले कभी आप देख रहे हैं किताब में जमा का कहीं इस्तेमाल कर दिया है और कहीं कहीं जो है पहले वाहिद है, तो यहाँ कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसमें जमा पहले इस्तेमाल है, तो उसी में से रुखामुन। और एक कायदा भी है कि कहीं अगर ते नहीं है और ते जोड़ देने से सिंगल बन जाता है, तो रुखाम लफ्ज़ जो आता है संग मरमर, आप जानते हैं सफ़ेद पत्थर जो होता है संगे मरमर, रुखामुन संगे मरमर। आप उर्दू में जानते हैं संग माने पत्थर, मरमर तो नाम है पत्थर का, संग मरमर सफ़ेद पत्थर आप देखते हैं, बहुत मशहूर पत्थर है, कीमती पत्थर होता है। अब इसके लिए आप अगर एक इस्तेमाल करना चाहें तो उसको वाहिद के लिए आपको क्या है? ते जोड़ना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे रुखामतुन। रुखामुन को आप क्या करेंगे? ते जोड़ देंगे तो बन जाएगा वाहिद, तो क्या हो जाएगा? रुखामतुन, रुखामुन संगमरमन जमा, इसका वाहिद जो है रुखामतुन, तो रुखामुन संगमरमर वाहिद रुखामतुन। ऐसे ही पहाड़ के लिए आप देखिए लफ्ज़ आता है जबलुन,
जबलुन के माने होते हैं पहाड़, पहाड़ी इलाका आप जानते हैं, बहुत सारी जगहों पे पहाड़ होते हैं। तो जबल के माने होते हैं पहाड़, जबलुन पहाड़, और इसकी जमा जिबाल। कुरान में बहुत सारी जगहों पे जिबाल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो जिबालुन अजबालुन दो जमाती, तो जिबाल का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है जमा के लिए, कुरान में भी बहुत से मकामात पे इसका इस्तेमाल हुआ है। और इसी को अजबाल भी इसकी जमा आती है, अजबालुन। तो दो जमा आप लिख लीजिए, जबलुन पहाड़ जमा जिबालुन अजबालुन, जबलुन पहाड़ जमा अजबालुन जिबालुन, दो जमा इसकी है। एक लफ्ज़ आप देखिए किताब में जो आपके दिया है तल्लुन, तल्लुन जो लफ्ज़ दिया है ये बारिश से मुतालिक लफ्ज़ है, यानी ऐसा जो हल्की बारिश फुआर होती है बारिश, उसको तल्लुन कहते हैं, यानी हल्की बारिश होती है, फुआर जिसको कहते हैं। कुरान में भी फतल्लुन का लफ्ज़ आया, तो तल्लुन के माने होते हैं फुआर, हल्की बारिश, फुआर। अब ये जो है लफ्ज़ जो है यहाँ तल्लु दिया है, और चूंकि ये पहाड़ का जिक्र है और इसी तरह पत्थर का जिक्र है, तो उसमें एक लफ्ज़ आना चाहिए था, अभी लिखा देते हैं। तो फुआर या शबनम इसके लिए तल के लिए इस्तेमाल होता है, शबनम। ये जो है लफ्ज़ जो इस्तेमाल हो तल्लुन, ये हल्की बारिश फुआर जिसको कहते हैं, या शबनम के लिए आता है। और इसकी जमा आती है तिलालुन, जमा क्या आती है तिलालुन और तेलालुन, तेलालुन। तो तेलालुन तेलालुन ये जो है शबनम या फुआर कहलाता। अच्छा, मैंने जैसे बताया पहाड़ का चूंकि जिक्र है, तो यहाँ पे एक लफ्ज़ आता है तलालुन, इसी में ये जो तेलल है, अगर इसी को तलालुन हम लिख देते हैं तो तलालुन के माने तो टीला, ये तलालुन लफ्ज़ जो आता है अरबी ज़ुबान में, किताब में नहीं दिया, लेकिन चूंकि ये पहाड़ और पत्थर ही से मुतालिक ये लफ्ज़ ये भी है, टीला होता है, पहाड़ से छोटा जो रहता है, खंडर जहाँ पत्थर वगैरह रहते हैं। तो तलल जो है ये लफ्ज़ आता है तललुन, खंडर, टीला, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो ये लफ्ज़ भी आप लिख लीजिए, ज़रूरत पे काम आने वाला है। तो खंडर, हाँ, इसकी जमा आती है अतलालुन तुलूलुन, अतलालुन और तुलूलुन। इसको अरबी में तलल कहते हैं, खंडर, जहाँ पे छोटे छोटे जो है पहाड़ होते हैं, टीला भी उसको कहते हैं खंडर। ऐसे ही ज़मीन से मुतालिक जो चीज़ें हैं उनमें एक समुंदर भी है, ज़मीन पे आप जानते हैं नदी, समुंदर, झील, ये सब जो अल्फाज हैं हम बोलते हैं। तो समुंदर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बहरुन, हाँ बहरुन, कुरान में भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और दरिया समुंदर आप सुनते ही हैं, बार बार जो है जिक्र किया जाता है। तो बहरुन दरिया समुंदर, जमा अबहरुन बिहारुन, तो यहाँ दरिया समुंदर जमा बिहारुन, बिहारुन और अबहरुन। कुरान में जो है दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, बिहार का भी और अबहर का भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अबहरुन। तो बहरुन समुंदर, दरिया जमा अबहरुन बिहारुन। हाँ, इसी तरीके से बुहैरतुन, ये बहीरुन यहाँ लिख दिया है, हालांकि बुहैरतुन लफ्ज़ आता है अरबी में। बुहैरा, बुहैरे अरब भी बोलते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है लफ्ज़। तो बुहैरतुन आप लिख लीजिए, इसकी जमा बुहैरात आती है, झील को कहते हैं। तो बहीरुन लिख दिया, आप उसको सही कर लें, किताब में जो है बहीर लिख दिया, लेकिन इसको बा पे पेश कर दीजिए, बुहैरतुन। उर्दू में भी इसको बोलते हैं बुहैरा, बुहैरे अरब, बहरे अरब, बुहैरे अरब। तो बुहैरतुन जो है लफ्ज़, ये बुहैरतुन माने झील, बुहैरतुन माने झील। अब इसकी जमा क्या है, ते जोड़ने से, अलिफ ते जोड़ने से इसकी जमा बन जाती है। तो बुहैरतुन झील जमा बुहैरातुन, जमा बुहैरातुन, बुहैरतुन जमा बुहैरातुन, झील को कहते हैं। हाँ, नहर उर्दू में भी बोलते हैं, अरबी में भी बोलते हैं। जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कुरान में आप बार बार पढ़ते हैं बहुत सारी आयत में। तो नहर जो लफ्ज़ है ये हम उर्दू में बोलते हैं, लेकिन है अरबी का। कुरान में भी बेशतर मकामात पे इसका जिक्र अल्लाह ने किया है। तो नहरुन माने होते हैं नहर, नून हा रे, नहर।
इसकी जमा अनहारुन, इसकी जमा अनहार आती है। अभी आपने नहार पढ़ा था दिन का, उसकी जमा जो है अनहरुन, नहरुन आती है। और यहाँ जो है नहरुन की जमा अनहार, नहर जमा अनहारुन। इसी तरीके से नहर जो है, नहर भी बोलते हैं और बड़ी नदी को भी बोलते हैं अरबी में। यानी आप सिर्फ नहर, छोटी नहर हमारे यहाँ या बड़ी सबको बोलते हैं, लेकिन अरबी में बड़ी नदी को नहर बोलते हैं, बड़ी नदी। तो नहर, नहर भी बोलते हैं और बड़ी नदी के लिए लफ्ज़ जो है नहर आता है। हाँ, इसी तरह नदी का किनारा जो होता है शातिउन, साहिल, किनारा। शातिउल बहर आप सुनते होंगे, तो शातिउन, शातिउन माने होते हैं साहिल, साहिल, और इसी को क्या कहते हैं, किनारा। तो साहिल, किनारा जो है, हाँ, साहिल, शातिउन, शातिउन किनारा, साहिल। इसकी जमा आती है शुत्तानुन, इसकी जमा आप लिख लीजिए शुत्तानुन, शुत्तानुन, शातिउन जमा शुत्तानुन। तो बच्चों देखिए, ये ज़मीन और आसमान के ताल्लुक़ से मैंने बताया कि अल्फाज जो हम इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, और हमेशा हमें ज़रूरत पड़ती है बोलने की, उर्दू में भी और ये अरबी ज़ुबान में भी ये अल्फाज बहुत मशहूर हैं। तो ये चंद अल्फाज जो हमने अभी लिखा है, ज़मीन और आसमान के अंदर ये चीज़ें हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। तो अभी जो अल्फाज पढ़ चुके हैं, टाइम कम है इसलिए हम जल्दी से इसको एक मरतबा फिर से रिवीज़न कर लेते हैं ताकि जो है गलतियाँ ना हो। तो आप देखिए, ज़मीन और आसमान से मुताल्लिक़ ये अल्फाज हम जो अभी लिखे हैं, पहला लफ्ज़ है अर्ज़ुन, ज़मीन। यह जो है आप देखिए, पहला लफ्ज़ है अर्ज़ुन, ज़मीन जमा अराज़ी, अर्ज़ूना। ऐसे समाउन, आसमान, समावातुन। हवाउन, हवा जमा अहवियतुन। माउन, पानी जमा मियाहुन, अमवाहुन, दो जमा इसकी। ऐसे ही नारुन, आग जमा नीरानुन, अनउरुन। और तुराबुन, मिट्टी जमा अत्रेबतुन, तुरबानुन। और आगे देखिए, वहलुन, कीचड़ जमा अवहालुन, वहूलुन। ऐसे तीनुन, मिट्टी, गारा जमा अत्यानुन। फखारुन, पकी मिट्टी, ठेकरी जिसको बोलते हैं, इसके लिए जमा नहीं है बल्कि वाहिद आता है, फखारतुन। रमलुन, रेत जमा रिमालुन, अरमोलुन। ऐसे ही हजरुन, हजरुन माने पत्थर जमा हिजारतुन, अहजारुन। और हसीयुन, ये जमा है, कंकरी को कहते हैं, और अगर एक कंकरी है वाहिद के लिए हसातुन लफ्ज़ आएगा। रुखामुन, संगमरमर, आप जानते हैं सफ़ेद पत्थर जो मशहूर होता है, संगमरमर वाहिद रुखामतुन। जबलुन, पहाड़ जमा जिबालुन, अजबालुन। ऐसे ही एक लफ्ज़ है तल्लुन, तल जो है बारिश जो हल्की होती है, फुआर जिसको कहते हैं, शबनम की तरह, तो शबनम, फुआर, इसके लिए तिलाल, तेलल आती है। हाँ, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक लफ्ज़ है तललुन, इसके माने खंडर, और इसकी जमा अतलालुन, तुलूलुन आती है। हाँ, ऐसे समुंदर और दरिया जिसको हम बोलते हैं, तो इसके लिए बहरुन, समुंदर, दरिया जमा बिहारुन, अबहरुन। और बुहैरतुन, झील आप सुनते होंगे, झील एक लफ्ज़ आता है, तो बुहैरा उसको कहते हैं, बुहैरतुन जमा तो बुहैरातुन। ऐसे नहरुन, नहर, बड़ी नदी को अरबी में नहर बोलते हैं। हम लोग जो नहर छोटे जो है निकलती है जो नदी, उसको हम नहर बोलते हैं, अरबी में बड़ी नदी को जमा अनहार। कुरान में भी है, जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, नहर की जमा अनहार। और शातिउन, साहिल, किनारा, नदी का जो किनारा होता है हम उसको क्या कहते हैं, शातिउन। तो बच्चों, ये अल्फाज हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन के अंदर जो पाई जाने वाली चीज़ें हैं या आसमान से मुतालिक जो चीज़ें हैं, तो अभी जो है आप इन अल्फाज को गौर से पढ़िए, याद कीजिए और जुमलों में भी इस्तेमाल करते रहिए। और इंशाअल्लाह हम फिर नए नए अल्फाज लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वक्त चूँकि ख़त्म हो चुका है, इसलिए आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।